Bismillahirrahmanirrahim. Today we are resuming our discussion on clinical optics in ophthalmology. We are in this section astigmatism, gonioidostrum, and again the basic concepts of retinoscopy as well. And before that, we had three parts of very basic discussion on laws of refraction, on equation of relationship of focal length to diopters, and D is equal to 1 over F and F is equal to 1 over D. Laws of reflection. Then we studied lenses and mirrors, and we revised the basic concepts of localizing the image from infinity to focal point. And then the same concepts were studied with another angle, that is in relevance to the vergence, that is the relationship of light rays to each other. What is zero vergence of parallel rays, and diverging are minus and converging is plus. And then we studied the vergence formula and how we use vergence formula to localize the image. And then we studied the concept of conjugate foci, which can be act as image and object to each other. And we studied the concept of schematic eye, so that if we fuse the cornea and the crystalline lens into one lens of 60 diopters, we can discuss it as a single lens. Then the eye can also have a far point. And applying this concept of far point, we studied the refractive errors, myopia, hyperopia, and emetropia. And then we studied the concept of error lens, that what error that particular patient has, which needs to be neutralized. The error length will be what if the patient is overcorrected in myopia, it will be a minus lens which needs to be neutralized. It will be a plus lens which needs to be neutralized by a minus lens. And then we try to connect the concept of error lens with the refractive error. And we have studied the myopia and hyperopia and how do we correct. And then we have covered the basic concept of image tracing if multiple lenses are there. And we have touched the concept of Galilean telescope as well, and how does it relates to the working distance and the error length, resulting into magnification by minus corrective lenses and magnification by plus corrective lenses. The concept of eyepiece and the objective lens. When we have corrected the patient with the plus lens, it will act as a Galilean telescope. And when we correct the patient with the minus lens, it will act as a reverse Galilean telescope, like seeing through the objective lens and seeing a minified image. And we had an interesting discussion that the far point of the patient, even a -5 diopter refractive error patient, can be corrected with a +5 diopter lens if the far points of both the eye and the correcting lens match to each other, with the compromise in quality and the laterality or the magnification and in inverse, the image will be upside down. So this is our rough revision, and today we are going to study astigmatism, refractive error, and conoid obstruction.
So we studied that the far point is a point in space conjugate to the retina when the eye is not accommodating. As an eye's refractive status is a function of the location of its far point. And we studied that the myopic eye, the far point lies in front of the eye. And we also learned that the refractive error is fundamentally a far point problem. The far point of the myopic eye is just anterior to the cornea, whereas the far point of the hyperopic eye is behind the eye, absent correction or accommodation, neither in focus at distance. कि ये कॉन्सेप्ट ये है कि फार पॉइंट में अकोमोडेशन रिलैक्स होगी जैसे भी आप करेंगे उसको. Then we studied the error length concept, how much undercorrected is the hyperopic eye and how much overcorrected is myopic eye. That is the error length. And error length will be opposite, sign of the error length will be opposite to the refractive error, which are we used to. So please don't confuse it with the concept of refractive error. Then we had a concept of primary and secondary foci as well. That if the parallel rays come to a lens and they cross or they appear to cross at a point, what's that focus known as? Secondary focus. And if from a point the rays emerge and after leaving the lens, they become parallel or they appear to emerge from a point and after leaving the lens they are parallel, it's primary focal point. And we also revised just before start of this discussion that if we find a lens which matches the far point of that particular eye, the image will conjugate to the retina. So this is the concept of retinoscopy and refraction. For a hyperopic eye, the error lens is -2 diopters, so it needs to be corrected with a lens with +2 diopters. The refractive error is +2. Similarly, for a myopic eye, the error lens is +4 diopters overcorrected. So algebraically, to make it 0 or emit rho, we need to neutralize this overcorrection by -4 diopters. So that's its refractive error. But note that the discussion thus far has dealt solely with spherical refractive error and therefore with spherical error lenses. तो स्फीरोसिलिंड्रिकल लेंस क्या होता है कि उसमें अगर आप एक एग को इमेजिन करें एज अ लेंस, तो उसमें एक सरफेस उसकी मेरिडियंस देखें तो एक ज्यादा कर्व्ड है और एक लेस कर्व्ड है. जो ज्यादा कर्व्ड है वो उसकी छोटी सरफेस होगी और जो लेस कर्व्ड है वो उधर को होगी जिधर को वो बिलोंग है. तो वो लेंस जो है उसको कहते हैं स्फीरोसिलिंड्रिकल लेंस. अगर किसी लेंस के सारे मेरिडियंस इक्वली कवर्ड हो तो दैट इज स्फेरिकल लेंस. बट इफ द meridional power differs from each other, that is spherocylindrical lens. So when the parallel rays will come, the overpowered meridian will focus in front and the underpowered meridian will focus rays behind, depending upon the disparity. जीरो वर्जेंस की लाइट आएगी तो चूंकि अगर तो एक्स और वाई दोनों मेरिडियंस की फोकल पावर एक ही होगी तो जीरो वर्जेंस की लाइट को वो एक ही पॉइंट पे फोकस कर देंगे तो सेकेंडरी फोकल पॉइंट बनेगा, एक ही पॉइंट बनेगा. So by definition, a spherical lens has equal power in all meridia and focuses parallel rays to a single point at its secondary focal point.
We are discussing idealized lenses here. We will see in chapter on aberrations that a true point focus is exceeding hard to come by. वो हम कॉन्सेप्ट वहां पढ़ चुके हैं जहां हमने ये पढ़ा प्लस लेंस इज कंपोज्ड ऑफ dash prisms, base to base prisms, and minus lens is composed of apex to apex prisms. और प्रिज्म का असूल है कि जितना उसके के करीब होगी रे उतनी ज्यादा डेविएट होगी, जितनी बेस के करीब होगी उतनी कम होगी. So that gives rise to concept of spherical aberration. और प्रिज्म्स में ये भी है कि the longer wavelengths will be refracted more and the shorter wavelengths will be refracted less. That will give rise to chromatic aberration. तो इसलिए वो ये बात कर रहे हैं कि ये हम आइडियलाइज्ड लेंस की बात कर रहे हैं, ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं. इस तरह का पॉइंट फोकस हार्ड है लेना. So more plus power is in the meridian. You can tell because it's more steeply curved. तो एग से आपको समझ में आती है बात. आमतौर पर जो लेंसेज अगर वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो तो उसका जो लंबा एक्सेस है वो लेस कर्व्ड है, फ्लैटर है, और जो छोटा एक्सेस है जिधर को वो गोल है वो स्टीपर है. तो वो स्फीरोसिलिंड्रिकल सरफेस है. जबकि टेनिस बॉल अगर शीशे की बनी हो और उसको आप हाफ काट के लेंस बना लें या दो पूरी कोई बना लें तो वो स्फेरिकल है, उसके सारे मेरिडियन पर है. तो दिस इज अ रफ एग्जांपल. So if the spherocylindrical length over the dioptric powers are not equal in our area, so the light will not be focused to a single point. तो अगर कोई पूछे astigmatism a kind of refractive error in which the power of different meridia to match each other and the point focus is not found. So how does a spherocylindrical lens focus the light? जो मेरिडियन एक्स है ये अंडा ही बना हुआ है. जो उसका वर्टिकल एक्सेस है वो लेस पावर्ड है और ये वाला जो वाई एक्सेस है ये ओवर पावर्ड है. और ये बिल्कुल उस तरह ओब्लॉन्ग है, ओवल है, गोल नहीं है, लाइक अ टेनिस बॉल नहीं है, लाइक एन एग है. तो एक्स की जो पावर है वो वाई के बराबर नहीं है. एक पावर लेस पावर्ड है, ये वर्टिकल वाला मेरिडियन, और ये हॉरिजॉन्टल वाला मेरिडियन मोर पावर्ड है. First, consider that a spherocylindrical lens in essence of two cylindrical lenses of different dioptric powers oriented 90 degrees apart. अब ये भी हमने एक assumption टाइप कर लिया है to make it simple कि वो 90 degrees apart ही होंगे. कभी-कभी नहीं भी होते. We will see in Cratoconus. और अल्लाह पाक की देखें कुदरत की जो उसमें है कि लिविंग टिश्यू है, लिविंग लेंस है, लेकिन वो कैसे इस ज्योमेट्री को फॉलो कर रहा है कि आप आमतौर पर देखते हैं कि मेरिडियंस आर 90 डिग्रीज अपार्ट एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू करेक्ट देम इजीली. कि आप आराम से ट्रांसपोज भी कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं. तो इसके पीछे असल में तो क्रिएटर है जिसने वो हिसाब से बनाई है चीज. उसके ऊपर हिसाब की इक्वेशंस लग रही हैं लिविंग टिश्यू पे और वो बिल्कुल फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे लेंसेज की है उस तरह आपकी पूरी आप यू आर एबल टू ड्रा एंड अंडरस्टैंड एंड करेक्ट. तो दो सिलिंड्रिकल लेंसेज हैं, एक लेस पावर्ड है और एक ज्यादा पावर्ड. तो सिलिंड्रिकल क्यों कहते हैं उनको कि जो लेस पावर्ड है वो एक ऐसे सिलेंडर का पीस है जो स्टीपली कर्व्ड है और जो ओवर पावर्ड है वो एक ऐसे सिलेंडर से ड्राइव किया गया है जो फ्लैटर है, लेस कर्व्ड है. इसलिए सिलिंड्रिकल लेंसेज इनको कहते हैं. हाँ, ये हाइपोथेटिकल है. असल में तो वो तो शीशा ही होता है.
ऐनक तो ऐनक ही है, चाहे वो -2 स्फीयर लगा हुआ है या -2 का सिलेंडर लगा हुआ है, बेशक ये देखने में तो ग्लास ही है, लेकिन एक्चुअली अगर हम उसको एक्सट्रापोलेट करें तो वो दोनों लेंस अलग-अलग सिलेंडर्स को काट के बनाए। इस सिलेंडर से जितने लेंस भी आप ड्रॉ काट के बनाएँगे, उन सबका ये मेरी फ्लैट ही होगा। First, consider that a cylindrical lens consists in essence of two cylindrical lenses of differing dioptric powers oriented 90 degrees apart. तो सिलेंडर यूं हॉरिजॉन्टल है, तो एक वर्टिकल है, तो दे 90 डिग्रीज अपार्ट। और इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा वो करना, बात को बाल की खाल उतारना की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें concepts समझने के लिए हैं कि फिजिक्स समझना जरूरी नहीं है हमारे, कि जी यूं होगा तो यूं होगा और यूं क्यों नहीं हुआ। ये तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट्स को सीमेंट करने की assumptions की जा रही है। अब ये इंटरेस्टिंग बात होगी कि अगर वो सिलेंड्रिकल लेंसेज इक्वल पावर के भी होंगे, लेकिन सिंपल अगर हम उनका एक्सिस चेंज कर देंगे तो उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज फर्क पड़ जाएंगी। जब वो सिलेंडर इस तरह से प्लेस्ड है तो वो और एक्ट कर रहा है, और जब वो इस तरह वर्टिकली प्लेस्ड है तो वो 90 डिग्री ओरिएंटेशन पे है, यू प्लेस्ड है तो वो 180 डिग्री ओरिएंटेशन पे है। A spherical lens can be thought of as two cylindrical lenses of identical dioptric power oriented 90 degrees apart. ये अगर आप ये सोच लें तो फिर और आसानी होगी। स्फेरिकल लेंस को भी हम कहते हैं दो सिलेंडर से बना हुआ है, दोनों एक ही पावर के हैं। तो वर्टिकल मेरिडियन पे भी पावर वही है और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे भी पावर वही है, तो इसलिए ये स्फेरिकल लेंस है। तो अगर यही सारे लेंसेज इस तरह दो सिलेंडर्स के बने होते हैं, तो अगर वो सिलेंडर्स इक्वली पावर्ड हैं, सिर्फ उनके एक्सिस में फर्क है, तो वो स्फेरिकल लेंस बन जाएगा। अगर वो स्फेरिकल सिलेंडर्स जो तो हमने यूज किए हैं लेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो डिफरेंट पावर्स के हैं, तो वो फिर स्फेरिकल लेंस बन जाएगा। हम कह रहे हैं स्फेरिकल में भी दोनों पावर्स हैं, दो सिलेंडर्स ही हैं वो भी, लेकिन इक्वल पावर के 90 डिग्रीज अपार्ट लगे हुए हैं। इसलिए चूंकि इसलिए उनकी पावर हर मेरिडियन में एक ही है, तो अगर हम वही सिलेंडर पकड़े और उनकी पावर डिफरेंट हो अपने मेरिडियन में, तो फिर हम उसको स्फीरो सिलेंडर कहते हैं। हम कह रहे हैं कि वो भी सिलेंडर्स ही हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन उनकी पावर इक्वल है और स्फीरो सिलेंड्रिकल में पावर डिफरेंट। So a three cylindrical lenses of identical power oriented 60 degrees apart are four at 45 degrees etc. But for now, just think of its two identical cylinders and 90 degrees. अब एक्सेस तो बेशुमार हो सकते हैं ना, 360 हो सकते हैं। हमने ये सिंप्लीफाई कर दिया हुआ है, 90 डिग्रीज अपार्ट दो को करेक्ट करते हैं और बाकी को हम कहते हैं वापस। हाँ, तो मतलब अब ये भी एक assumption ही है और कुदरत ही हमारी मदद करती है कि हम दो रेडियंस को करेक्ट करते हैं, और लेंस जो लगता है वो तो 360 लगता है। तो समहाउ उनके सारे डिग्रीज अपार्ट ये वाली रेशो अप्लाई होती है। जो हम काम कर रहे होते हैं वो कितना सादा सा होता है, लेकिन जो पीछे ऑप्टिक्स कार फरमा होती है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। नोट दैट a vertical lens has no power in the meridian of its axis. जिस एक्सिस पे वो लगा हुआ है वहां उसकी कोई पावर नहीं है, वहां से कुछ नहीं अनडेविएटेड, वहाँ उसकी कर्व नहीं है, वहाँ वो प्लेन है। इसलिए अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है। हम अक्सर एक दूसरे को समझा रहे होते हैं, सिलेंडर आपको पता है 90 डिग्री अवे एक्ट करता है। ये वो बात है।
कि अपने एक्सिस में जिस पे सिलेंडर लगा हुआ है वहां पे वो 0 पावर का होता है, इसीलिए वो सिलेंडर है। अगर वहां भी उसकी वही पावर होती तो फिर वो स्फीयर था। वहां वो प्लेन है, वो सिर्फ इस कर्व सरफेस पे एक्टिव है, यहाँ पे नहीं है। इसी तरह जब वो 180 पे पड़ा है तो 180 वाली रेज को वो अनडेविएटेड जाने देगा, सिर्फ इस एक्सिस में जो उसके साथ साथ टकराएंगी उन पे उसकी रिफ्रैक्टिव पावर मुअस्सर होगी। Because a cylinder has a power in only one meridian, there is no way it could focus parallel rays to a point. पॉइंट फोकस सिलेंडर बना सकता है क्योंकि उसने एक बैंड को छोड़ देना है, या उसने हॉरिजॉन्टल रेज को फोकस करना है या वर्टिकल को करना है। जो उसके एक्सिस के पैरेलल होंगी वो अनडेविएटेड चली जाएंगी, तो वो तो पैरेलल ही रहेंगी, तो पॉइंट फोकस कैसे बने? 90 डिग्री रफे वाले मेरिडियन पे तो उसने एक्ट ही नहीं करना, तो सिलेंडर कभी भी पॉइंट फोकस नहीं बना सकता। सो देन हाउ डज अ सिलेंडर फोकस लाइट? पैरेलल रेज आएंगी फ्रॉम अ पॉइंट एट इंफिनिटी, तो ये 90 डिग्री पे एक सिलेंडर पूरे रास्ते में हमने रख दिया, उससे साथ आके टकराएंगे। The separators of the rays in Planck indicate that they originate at different locations on the source of origin. They do not. They originated from a single point, but are so far removed from the point that their divergence is not clear. तो वो तो हमेशा एक पॉइंट से निकलेंगे, तो कभी भी निकलते हुए पैरेलल नहीं होंगे, लेकिन वो स्पेस में इतना ज्यादा उन्होंने ट्रेवल कर लिया कि फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस उनकी वर्जन जीरो होगी, पैरेलल होगी, इतनी दूर से आ रही है। So because the cylindrical length at vergence in one meridian only, consider a cylinder oriented as shown, that is filtering parallel rays from point at infinity. तो जो तो उसके 90 डिग्री टू इट्स एक्सिस आके टकराएंगी उनको तो वो एक पॉइंट पे फोकस करेगा, उस बैंड को। तो जब ये सारी रेज यहाँ से भी गुजरी, यहाँ से भी गुजरी, यहाँ से भी गुजरी, तो ये सारी एक इधर फोकस इधर होगी, इन दोनों को मिला दें तो वो क्या फोकस बना रहा है? लाइन बना रहा है। दूसरी रेस को तो पॉइंट फोकस की बजाय अब हम आ रहे हैं उस पे। The point source is focused as a line parallel to the axis of the cylinder. There is no point focus in a cylinder, but it focuses the light parallel rays, multiple points which are joined, a line is formed which is parallel to the its axis. क्योंकि जो एक्सिस के पैरेलल चलेगी, जो एक्सिस से 90 डिग्री जीरो वर्टेंस की रेज आई, उनको सबको सारे बैंड को उसने फोकस किया और एक लाइन बना दी। कंसीडर इंटरसेक्शन दैट इज पैरेलल रेज फ्रॉम पॉइंट infinity. The light is converging prior to forming the focus line. जाहिर है कि वो सारे पॉइंट फोकस बनेंगे जब वो, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, जब वो रेज किसी एक जगह से फोकस करती है तो वहां रुक तो नहीं जाती, रुकेंगी तो तब अगर वो नॉन ट्रांसपेरेंट मीडिया होगा। तो अगर वहां कोई मीडिया नहीं पड़ा, वो एयर भी फॉर एग्जाम्पल या स्पेस में बन रही है, तो वहां वो पॉइंट फोकस करने के बाद वहां खत्म नहीं होगा, रोशनी का सफर तो जारी रहेगा। वो क्रॉस करके एक दूसरे से फिर डाइवर्ज करना शुरू कर देंगे। अब हम को लाइट की तरफ जा रहे हैं, तो वो लाइन तो बनाई है हमने, लेकिन लाइन के बाद दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर। इफ वी एग्जामिन लाइट एट वेरियस पॉइंट्स, तो अगर आप इस लाइन से जो सिलेंडर की लाइन बनी है उससे आगे देखेंगे, दे आर कन्वर्जिंग, और उससे पीछे देखेंगे तो दे आर डाइवर्जिंग। और जो जितना फासला ज्यादा होगा उतना ही रेज का फासला एक दूसरे से ज्यादा होता जाएगा। यू गेट दिस पॉइंट? ये फासला कम हो रहा है।
हत्ता के लाइन बन गई और क्रॉस किया तो फासला बढ़ना शुरू हो गया हत्ता के दे विल बी वाइडली अपार्ट. If we examine the light at various points, we will find it formed a series of rectangles that vary in depth but not height. हाइट तो वही रहनी है ना लाइन वाली, उनकी चौड़ाई में फर्क पड़ना है ना, तो उसी बैंड के अंदर रहना है जितना वो सिलेंडर का साइज है. अब ये देखिए ये कोशिश की है 3D डायग्राम बनाने की. सिलेंडर पड़ा है इस तरह से यूं करके, एक सिलेंडर समझिए कोई भी गोल चीज है, ये ऐसे पड़ा है, ग्लास का पीस है यूं पड़ा है, उसका अगला एंड देख रहे हैं और पिछला देख रहे हैं, ये 3D डायग्राम. पैरेलल रेज फ्रॉम पॉइंट एट इंफिनिटी, वो कन्वर्ज हुई, यहाँ पे क्रॉस किया और फिर डाइवर्ज होना शुरू हो गई. तो ये 3D में आपको नजर आ रहा है कि उनका फासला बाहम कम होता हुआ और बाद में फिर बढ़ता हुआ. With this cylinder orientation, the light forms a series of rectangles that vary in height but not in width. हाँ, चूंकि आपने उसको इस डायग्राम में आपने उसको यूं रख दिया बजाय यूं का. मकसद तो कहने का यही है कि वो एक जो उनकी लाइन है वो तो चेंज नहीं होनी, हॉरिजॉन्टल बनी हुई है तो वो ही रहेगी, फिर उनका वो हाइट बदलेगी. और अगर हमने सिलेंडर यूं रखा हुआ है तो वो पैरेलल टू द एक्सिस जो लाइन बनी है वो तो चेंज नहीं होना, अपोजिट एक्सिस बदलेगा. तो दोनों सूरतों में एक डायमेंशन बदलेगी, एक नहीं बदलेगी. यानी कि जो उसके पैरेलल टू द एक्सिस होगा वो साइज वही रहेगा, उसके 90 डिग्रीज टू द एक्सिस चेंज आएगी रेज के बाहमी फासले में. तो जो रेज का बाहमी फासला है वो एक्चुअली तो इमेज ही आप उससे कंस्ट्रक्ट करेंगे ना. So if the cylinder is placed like this in 3D, देखिए ये लाइन इस तरह से बन रही है, और if the cylinder is vertically placed तो ये वर्टिकल लाइन बन रही है. तो इस लाइन का साइज एक ही रहेगा पास करने के बाद, जबकि जो रेज का बाहमी फासला है वो चेंज होगा 90 डिग्रीज टू दिस लाइन. वो रहनी है ना, क्योंकि उसने सारी रेज को वहां पॉइंट्स बनाने हैं, पॉइंट्स को मिला के लाइन एक ही बननी है, और लाइन को क्रॉस करने के बाद रेज ने डाइवर्ज करना है. तो स्फेरोसिलेंड्रिकल लेंस में एक लाइन आगे बन गई, वो दोनों शीशे मिला दिए, अब उनकी पावर डिफरेंट है, और एक लाइन पीछे बन गई. तो वो रेज दोनों जगह पे आगे भी क्रॉस कर रही है, पीछे भी क्रॉस कर रही है, तो दरमियान में एक वो पैरेललोग्राम बन जाएगी. So if a spherocylindrical lens is composed of two cylindrical lenses of different dioptric powers oriented 90 degrees apart, a spherocylindrical lens must do something like this. Let's examine this in more detail. Consider a spherocylindrical lens that is dioptric equivalent of +1 and +2 cylinders oriented thusly. नवी टर्म पाती thusly. तो ये +1 का लेंस है और ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है ये +2 का है. तो ये प्लस का सिलेंडर यूं लगा हुआ और +2 का सिलेंडर यूं लगा हुआ. Note, the +1 and +2 diopters are pointing to the meridia of power 90 degree and 180 degree respectively. The axis of +1 diopter lens is at 180 और +2 is at 90. ये 90 पे है, ये 180 पे. ठीक है. So in power cross format it will be written like this: +2 at 180, +1 at 90. By the way, I know power cross are confusing and intimidating. We shall define them in future chapter. अभी जब हम रेटिनोस्कोपी पे जाएंगे फिर
इसको डिटेल से देखेंगे। पैरेलल एक्सिस पे वो 0 पावर होगी। Let's examine the light as it moves along its post refraction path. तो अब हमें ये तो पता ही है, सादा सी बात है कि प्लस 2 वाले का तो 50 सेंटीमीटर होना है, तो प्लस 1 वाले का 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होना है फोकस। F is equal D is equal to 1 over F। तो अब हम वो अप्लाई कर देते हैं। दोनों मेरिडियंस में रेज कन्वर्ज तो कर रही हैं, एक में कम कर रही हैं, एक में ज्यादा कर रही हैं। तो हॉरिजॉन्टल जो मेरिडियन है वो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि उसमें पावर ज्यादा है, तो उसकी लाइन पहले बन गई। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? D इज इक्वल टू 1 ओवर F। और प्लस 1 का 1 मीटर। तो जो लाइनें 1/2 मीटर पे फोकस हुई हैं उस लाइन के बाद वो फिर डाइवर्जेंट हो जाएंगी, ये तो अभी हमने पढ़ा। और अब हम जाएंगे दूसरे लेंस पे कि प्लस 1 वाले की कहाँ बनेगी? 1 मीटर पे वो निकाला है 1/1, और उससे पहले वो कन्वर्ज कर रही होंगी और बाद में डाइवर्ज कर रही होंगी। तो अब इस पे गौर करें, ये बन गई ना वही ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम दोनों के दरमियान। ये देखें, ये 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 the rays are now diverging in both the horizontal and vertical aspects। टोटल रेस में तो यही इम्पैक्ट आएगा ना कि ये पहले पहले प्लस 2 वाला बैंड इफेक्टिव होगा, फिर प्लस 1 वाला होगा। यहाँ पहले एक बैंड बना, फिर लाइन बनी, फिर वो सर्कल छोटा है फिर बड़ा होना शुरू हुआ। इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल है वो भी चेंज होना शुरू हुआ। So let's get back to the area we skipped. As it passes through this location, the pattern of light is morphing from a vertical oval to a horizontal oval. Does it make sense that at some point in the process the light pattern will form? ये देखिए, ये कोनाइड ऑफ स्टर्म इसी से निकलना है कि वो रेस तो इकट्ठी आ रही हैं, हमने समझने के लिए उनको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलग अलग लेंसेज को डिस्कस किया है। तो ये वर्टिकल ओवल था पहले, फिर वो कोलैप्स हुआ, फिर हॉरिजॉन्टल हुआ, फिर हॉरिजॉन्टल बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन एक दरमियान में पॉइंट ऐसा होगा जहां वो बिल्कुल गोल हो जाएगा। उसको कहते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। ये यहाँ पे जो बैंड बन रहा है, यहाँ जो इंटरसेक्ट हो रही हैं, वहां एक गोल दायरा बनेगा दोनों मेरिडियंस का। पॉइंट फोकस तो नहीं होगा, हाँ, कि उनकी जो रेज का दोनों का वर्टिकल सेपरेशन और हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है वो इक्वल होगी। कहीं तो होगी ना। प्लस 1 वाला क्रॉस करने के बाद डाइवर्ज हो गई, प्लस 2 वाले की पहले क्रॉस करने के बाद उसकी कन्वर्ज हो रही है, उसकी डाइवर्ज हो रही है, लेकिन उनका फासला वहां इक्वल है। ये देखें, प्लस 1 वाले की कन्वर्ज हो रही है, उनके दरमियान ये फासला है, और प्लस 2 वाले की डाइवर्ज हो रही है, उनके दरमियान ये फासला है। तो ये फासला इक्वल हो गया।
वर्टिकल मेरिडियन वाली रेस का फासला भी वही है और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन वाली रेस का फासला भी वही है, अगरचे +1 वाली कन्वर्ज हो रही है और +2 वाली डाइवर्ज हो रही है, लेकिन वो जिस भी सोर्स से आ रही है उनका फासला एक हो गया, तो वहां बजाय ओब्लांग बनने के या लाइन बनने के, हॉरिजॉन्टल सर्कल बनने के या वर्टिकल ओब्लांग अंडे जैसी ओवल शेप बनने के राउंड सर्कल बन गया, उसमें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग रेज में फासला बराबर हो गया, उस सर्कल को सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन कहते हैं। तो इसका फासला कितना होगा? To answer this, first we need to determine what is the dioptric power associated with the circle. कैसे करेंगे? डिस्टेंस ही देखना है। The dioptric power is the spherical equivalent of the length. अल्लाह अल्लाह, तो आप कई दफा करते भी हैं कंप्रोमाइज कि यार इन्हें स्फेरिकल इक्विवेलेंट दे दो, ये उसी से कंफर्टेबल है। मतलब अब आप देखना चाहते हैं कि ये जो मेरा स्फीरोसिलेंड्रिकल कॉम्बिनेशन है, इसका सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन कहाँ होगा, तो उसका स्फेरिकल इक्विवेलेंट निकाल लें। तो स्फेरिकल इक्विवेलेंट क्या है? दोनों सिलेंडर्स की पावर जमा करके उसको 2 पे डिवाइड कर लें। अगर सिलेंडर है तो जो आपकी रिफ्रैक्टिव इक्वेशन है उसको कंफ्यूज नहीं करना, उसमें स्फीरो सिलेंडर लिखा होता है, ये वो 2 सिलेंडर्स की पावर दे रहा है आपको, तो इनको तो एवरेज ही करना है ना, तो 1.5 को कन्वर्ट कर लें 1/1.5, तो जो भी फासला आएगा वहां पे सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन बनेगा, वो 6 पॉइंट समथिंग होगा। 100 करें ना, 15 × 90, 15 × 5 = 105, 6 पॉइंट समथिंग, 6.4, ये 0.67। वो स्फेरिकल इक्विवेलेंट होता है, उधर सर्कल बनता है। बस अब आपको पता चल गया कि अगर आप पेशेंट को किसी को स्फेरिकल इक्विवेलेंट दे देते हैं तो वो शार्प फोकस नहीं होगा, लेकिन वहां रेज का फासला मिनिमम होगा और उसकी विजन बेस्ट होगी उस गिवन सर्कमस्टांसेस में। वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया 1/1.5 करके। Note that this circle about which we will have much more to say shortly is located at the dioptric halfway point between the focal lines. 1.5 is halfway between 1 and 2. 2 50 पे थी, 1 पे 100 सेंटीमीटर्स पे थी और ये 50 पे थी, तो उनके दरमियान में यही बनना था, उन दोनों के दरमियान में 0.67। ज्योमेट्रिक के बराबर नहीं है ये, वो तो 0.75 होना चाहिए था। अगर ज्योमेट्रिक करते तो ये 50 सेंटीमीटर का फासला है ना, तो उसका हाफ वे तो 75 पे होना चाहिए था, लेकिन ये डायोप्ट्रिक जो है वो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट नहीं है, वो हमने कैलकुलेट किया कि वो 0.67 है। मेरा ख्याल है वी कैन एंड अप इट हियर। काफी ये इंसाइटफुल होगी डिस्कशन कि हमने स्फीरोसिलेंड्रिकल कॉम्बिनेशन को देखा, मेरिडियंस का कॉन्सेप्ट देखा, 2 सिलेंडर इक्वल पावर के अगर हम जोड़ दें, आपस में मिला दें, तो वो स्फेरिकली हो जाता है, दे गिव यू पॉइंट फोकस। लेकिन अगर एक सिलेंडर जो है वो अपने एक्सिस में तो 0 पावर करता है, लेकिन उसके 90 डिग्री एक्सिस पे पैरेलल बीम्स को मल्टीपल पॉइंट्स में फोकस करता है, तो हमने पढ़ा कि वो लाइन बना देता है इंस्टेड ऑफ अ पॉइंट फोकस। तो इसी तरह जो उन दोनों को मिला देते हैं तो 2 लाइनें बन जाती हैं, और लाइट रेज तो उनसे गुजरने के बाद या कन्वर्ज कर रही होंगी या डाइवर्ज कर रही होंगी, लेंस ने कुछ तो करना है ना,
आई तो पैरेलल थी, तो गुजरने के बाद माइनस लेंदा है तो डाइवर्ज कर रही होंगी, प्लस है तो कन्वर्ज कर रही होंगी। तो उनकी उन प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर आप देखते हैं कि लाइट रेज का फासला कितना है आपस में। तो वो पहले सर्कल्स बनते हैं, पहले वर्टिकल सर्कल बनता है डिपेंडिंग अपॉन द पावर, फिर हॉरिजॉन्टल सर्कल बनता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां उन दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन में लाइट रेज का डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लाइट रेज का फासला एक ही हो जाता है। दैट पॉइंट गिव्स राइज टू सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय स्फेरिकल इक्विवेलेंट। स्फेरिकल इक्विवेलेंट को भी आगे हम डिटेल में देखें। इट्स गेटिंग मोर इंट्रिगिंग एंड मोर इंटरेस्टिंग।